So everyone note down. Now we are starting inverse trigonometric function. Now to teach the concept of inverse trigonometric function, I'll be beginning with the simple function and I'll show you what is the condition for the existence of inverse of a function and how do we find out inverse and what is the meaning of inverse. These things let's make clear first and so that we can understand inverse of trigonometric function. So let's begin with the simple example. Inverse trigonometric function. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक को हटा दूं सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हाउ डू वी फाइंड आउट ओके सो नोट डाउन सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल suppose we have got a function a to b where a is the set of domain and b is the codomain set. Now first tell me, don't copy and just tell me the answer. The function which I have represented here is what? The first question is this 1 1 or many 1? 1. Yes, your answer is 1. Second thing, is this onto or into? Clearly, this is onto function. Why this is onto function? Because you can see that the codomain set is the collection of these four elements, and all these four elements will present in which set? Range set. अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए इसका मतलब है फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग onto function. मतलब ये कैसा फंक्शन है onto function. So I hope you all can understand that this function is 1 1 and onto both. It means that this function is bijective. Is that clear? Let's take one more example. The second example which I'll show you is the example of a function showing not 1 1, not many, and not onto as well. Now tell me, this is what, which type of function? 1 1, many 1? Many 1. Many. This function is onto or into? Into. Now, initially I won't give you the condition for the existence of inverse. Let me explain you inverse पहले होता क्या है मतलब एक जनरल आइडिया पहले देते हैं पहले हम लिख देते हैं उसके बाद हम तुम लोग से पूछेंगे कि कौन सा किस केस में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आई रिपीट वंस अगेन I will write the inverse of this function also. I will write the inverse of this function also. Though I did not explain you what is the condition for the existence of inverse. मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले और फिर तुम लोग मुझे गाइड करना कि सर कौन सा करेक्ट है मुझे तुम लोग बताना है ठीक है उससे पहले एक और बात जैसे ये फंक्शन है इस फंक्शन में एक बात बताओ इस फंक्शन f में a का 1 का इमेज क्या बता सकते हो तुम लोग A. तो लेट मी टेल यू दैट इस फंक्शन का इनवर्स जो होगा इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डज नॉट मीन रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन सो डोंट थिंक दैट कि सर आपने एक फंक्शन लिखा है f तो जब आपने पूछा इसका इनवर्स क्या होता है तो हम ये जवाब दे देंगे 1/f और 1/f को हम लिख देंगे f इनवर्स ऐसे this is not actually inverse let me tell you 1/f is not same as f inverse ये दोनों अलग अलग चीजें अगर हम पूछे अलग अलग कैसे है तो मेरा जवाब ये होगा तुम लोग पूछोगे तो कि ये जो है this is just reciprocal of this function but what is this is the inverse of a function how is reciprocal and inverse I mean different like if I ask you that you have got a function f of x which is 1/x tell me what is its reciprocal then your answer is simply
इट्स रेसिप्रोकल इज x बिकॉज़ 1 बाय x का रेसिप्रोकल क्या होता है x होता है। तो यही होता है रेसिप्रोकल। इनवर्स ये बिल्कुल नहीं होता है। इनवर्स क्या होता है ध्यान से नोट करना। अगर मान लो मैंने फंक्शन में 1 का इमेज a निकाला तो इसके इनवर्स में जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ऐसे, दिस इज द नोटेशन। अगर एक फंक्शन f है तो इसके इनवर्स का नोटेशन क्या होगा ऐसा होगा, दिस इज द नोटेशन। ये मत समझ बैठना कि सर आप बता तो वही रहे ना, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऐसे अलजेब्रा में पढ़ा है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x टू द पावर क्या होता है। तो सर आप अगर ये पहले हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा है तो यहाँ पे हम 1 बाई एफ को क्यों नहीं ट्रीट कर सकते f इनवर्स, बिल्कुल नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट इज जस्ट नोटेशन। क्या चीज का नोटेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स का नोटेशन f एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। x को ऐसे क्यों लिखा जाता है, a को ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसका कोई जवाब दे सकता है। तो वैसे एग्जैक्टली सेम है, ये नोटेशन है, समझ में आया बात। तो एग्जैक्टली अगर ये इसका नोटेशन है तो अब मैं अगर तुमसे इसमें ये सवाल पूछूं कि a का इमेज क्या होगा तो आंसर क्या होगा 1, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर मान लो यहाँ पे 2 का इमेज d है तो बताओ तो इसके इनवर्स f इनवर्स d का इमेज क्या होगा बताओ तो। बट अब ठीक है ये तो बता दिया मैंने। और इस हिसाब से तुम ये भी बोल सकते हो कि सर क्या ऐसा ही होता है कि सर जब sin साइन फंक्शन है और जब मैं 30 डिग्री पूछ रहा हूं तो इसका आंसर हाफ है, तो क्या साइन इनवर्स हाफ का आंसर है उसी तरीके से क्या 30 डिग्री होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि क्या मैंने तुम लोग को कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताया, नहीं बताया। तो ये चीज के ऊपर पहले हम लोग फोकस करते हैं। मैंने इनवर्स बता दिया ऐसे ऐसे होता है, इस चीज को इनवर्स बोलते हैं, बट बहुत बहुत छोटा सा चीज बताया। बट मैंने ये नहीं बताया कि देखो ये कंडीशन होता है इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए। तो लेट्स स्टडी इन डिटेल पहले कि इनवर्स का एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम बिना जाने हुए, मान लो हम ऐसे लोग हैं कि हमको पता ही नहीं कि इनवर्स क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, उससे हम इनवर्स को डिराइव करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं उसका इनवर्स लिख देते हैं। तो अगर एक फंक्शन में 1 का इमेज a है तो इसके इनवर्स में किसका इमेज लिखेंगे हम, a का इमेज 1 लिखेंगे, 2 का d का इमेज 2। इसका मतलब मुझे फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे, अब हमें लिखना पड़ेगा नॉट a टू b बट b टू a। अब ये फंक्शन f है तो इसका इनवर्स क्या लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे a b c d और यहां पे 1 2 3 4, 1 का इमेज a का इमेज 1, b का इमेज 2, c का इमेज 3, d का इमेज 4। अब एक काम करते हैं यहाँ पे भी हम एक बार इसके इनवर्स को लिख देते हैं, एक बार फिलहाल के लिए लिख देते हैं, पता ही नहीं है क्या होता है इनवर्स, थोड़ा बहुत पता है क्या होता है तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है और लिख देते हैं जबरदस्ती। और अब उसके बाद देखते हैं जबरदस्ती लिखने के बाद कि जो मैंने लिखा है वो गलत है या सही है, ठीक है, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा सी। अनजान बन के लिख रहे हैं बिना जाने हुए कि हमें इनवर्स को जानना है कि क्या होता है इस चीज को, और मैं बस लिख दे रहा हूं और लिखने के बाद पता करते हैं हम लोग कि जो मैंने लिखा है वो सही है गलत है। तो यहाँ पे 1 का इमेज ए है, 1 का इमेज बी है या नहीं है, 2 का इमेज क्या है सी है, 3 का इमेज क्या है डी और ई है, और कुछ बचे, और कुछ बचे सी है। अब मेरा सवाल है तुम लोग से कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने लिखा है तुम बताओ दोनों में, तुम बताओ मुझे नंबर 1 में जो जिसका मैंने इनवर्स लिखा है क्या ये फंक्शन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर रिलेशन टू बी अ फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, याद करो मैंने बताया था एवरी एलिमेंट इन द डोमेन सेट मस्ट हैव a unique image, a unique image. What is, do you find any of every element in the domain set, देखो सारे एलिमेंट्स डोमेन सेट में उसका इमेज फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो 1 का इमेज, b का इमेज, c का इमेज, d का इमेज, कैसा इमेज है, ऐसा है a का इमेज 2 3 है नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बात बताओ, अब वो पहले क्या था, ये फंक्शन पहले क्या था, बोलो पूरा बताओ क्या था, 1 1 था और इसका मतलब ये हुआ, चलो ये एक बार इस पे एक बार आते हैं, ये फंक्शन क्या था मेनी 1 था और इनटू था। अब एक बार इसका मैंने इनवर्स जबरदस्ती लिख दिया बिना मतलब ट्रायल एंड एरर, मतलब मुझे जेल में पता नहीं था क्या है तो मैंने लिख दिया। तो एक बात बताओ व्हाट इज द इमेज, अच्छा बताओ तो फंक्शन का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो एवरी एलिमेंट, क्या सारा एलिमेंट का इमेज है, किसका किसका इमेज नहीं है,
तो यही तो ये क्राइटेरिया फेल कर दिया, कंडीशन फंक्शन का जो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा बात, वन का कितना इमेज है? क्या वन टू मेनी फंक्शन होता है? नहीं, याद करना, वन टू मेनी इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिवन फंक्शन मेनी वन और इनटू है, इसका मतलब वो फंक्शन उसका इनवर्स नहीं हो सकता है। समझ में आया बात? उसका इनवर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? चलो ठीक है, तुम यहाँ पे अगर फंक्शन में ए का इमेज वन पूछोगे तो प्रॉब्लम आएगा जब हम पूछेंगे कि वन का इमेज क्या है उसके इनवर्स में। वन का इमेज क्या बोलोगे तुम, ए बोलोगे या बी बोलोगे? तो क्या ये एक एलिमेंट का दो इमेज यूनिक इमेज हुआ? नहीं। तो क्या फंक्शन हुआ? नहीं। तो ये याद रखना, फंक्शन होने के लिए ऐसा होना चाहिए। फंक्शन होने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? द गिवन फंक्शन मस्ट बी एंड मींस द फंक्शन मस्ट बी, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए द गिवन फंक्शन मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? मतलब any bijective function is what? Invertible. I repeat once again, any bijective function is, what is the meaning of invertible? A function f is any function f. I mean, just I'm taking an example. Any function f is said to be invertible if it is, and one more thing, अगर f का इनवर्स ये है, f इनवर्स का इनवर्स क्या है? That's correct. सिर्फ हम ये बोलेंगे कि f का इनवर्स ये भी गलत। दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। That's correct. And from here we conclude that अगर हमारे पास एक फंक्शन है f इनवर्स जिसपे इमेज a का इमेज 1 है, इसका इनवर्स क्या है? f। इस पे 1 का इमेज क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए। और देखो दोनों, अगर दोनों जो फंक्शन है ना, अगर f का इनवर्स f इनवर्स है तो दोनों ही बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर ये बाइजेक्टिव है तो डेफिनेटली उसका इनवर्स भी क्या होगा? याद रखना, अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा? बाइजेक्टिव। नोट इट डाउन। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो चलो एक बार ये कॉपी करना, मतलब हम लोगों ने एक चीज डिराइव कर लिया है, कॉपी करने के बाद लिख दो कि ये चीज क्यों फंक्शन नहीं हो रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, ये फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज़ दिस फंक्शन इज नॉट, और ये फंक्शन का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज़ द एग्जिस्टिंग फंक्शन वाज बाइजेक्टिव। और एक और पॉइंट लिख देना दैट if f is a function and f inverse is its inverse, both has to be bijective. Both the functions will be what? A bijective function. Okay, just copy down till you. And one more thing, तो अब ये अगर हम तुमसे ये सवाल पूछे कि f is what, listen here, f is what, just everyone hear me once, everyone. See, in mathematics there are two types of functions. One is called predefined functions and one is called user defined functions. What is the meaning of predefined and user defined functions? Listen here. For अगर मान लो मैं तुमसे आज एक सवाल पूछूं कि h is any function, what is the image of 1 in this function? Can you answer? कोई मुझे जवाब दे पाएगा कि सर h पे 1 का अगर मैं पूछूं कि h एक फंक्शन है उस पे 1 का इमेज क्या होगा, तो तुम मुझसे एक सवाल तो जरूर करोगे, सर आपने फंक्शन का डेफिनेशन दिया नहीं है और हमसे सवाल पूछ रहे कि इसका इमेज क्या होगा। अगर आप देख रहे कि सर h एक फंक्शन है और डेफिनेशन है x प्लस 1, तो फिर हम जवाब दे पाते सर इसका आंसर इमेज 2। बट एक बात बताओ, ये क्या है तुम्हारा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम यूजर मतलब बुक में बोलो, बुक को यूजर बोलो, ऑथर को मतलब, या कोई भी बुक में क्वेश्चन दिया रहा है या मैं दूं, ये सब क्या है? मैं दे रहा हूं तभी तो तुम आंसर दे पा रहे हो। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसा होता है मैथमेटिक्स में दैट इज प्री डिफाइंड। डू यू नो व्हाट आर दोस? देयर आर 6 प्री डिफाइंड, I mean right now let's think that there are 6 predefined functions जो तुम्हें अभी presently चाहिए। And what are they, do you know? They are sine, I mean let's be very specific to trigonometric functions. Trigonometric functions are predefined. What are one of the predefined functions? Trigonometric functions. Why? Because now if I ask you what is the value of sine pi by 3, everyone will answer the single answer. सबका अलग अलग आंसर नहीं होगा। तुमको इसके लिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी पता है कि sin थीटा क्या होता है? p by h। cos थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? सबको ये बात पता है। तो इसीलिए सबको ये बात पता है तो sin 60 का आंसर किसी को देने में कोई प्रॉब्लम? तुम क्या पूछोगे सर इसका डेफिनेशन क्या है? पूछोगे नहीं। sin 60 का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos pi by 3? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan pi by 3? √3। तो सबको पता है ये बात। अगर हम इस हिसाब से तुमसे पूछे कि sin इनवर्स √3/2 क्या होगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन तुम मुझसे एक सवाल जरूर पूछोगे, अगर किसी के दिमाग में बैठ चुका है तो मैं एक बार इस चीज को कॉपी कर लो, फिर मैं वो सवाल पुट करूंगा। ठीक है, वो भी सोचना चाहिए क्या है वो सवाल, पहले एक बार ये कॉपी कर लो और मैं एक बार एक फंक्शंस का एक सम मैं कराता हूं पहले,
that is fx equal to sin x which was there in that number 11. पहले मैं वो कराता हूँ, फिर मैं तुम लोग से एक सवाल पूछता हूँ, फिर तुम लोग को ये बात समझ में आएगा, अरे साइन फंक्शन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है, फिर ये चैप्टर कहाँ से आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे क्यों एग्जिस्ट करता है. सो एवरीवन कॉपी head on everyone. Condition for the existence of inverse of a function. Condition for the existence of inverse of a function. So suppose we have got a function f a to b. Then the inverse of this function f exists. Then the inverse of this function f exists if f is bijective. If f is a bijective function. Is that clear? Therefore, therefore we can say that the inverse of this will be what? b2. Okay, the inverse of this will be what? b2a. Is that okay? एक एग्जांपल लेके इस चीज को हम लोग समझते हैं, सिंपल एग्जांपल लेके फिर हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क. तो सपोज मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f दैट इज a to b. The definition of the function is x minus 1 divided by x minus 4, and let's say that a is set of all real numbers except 4 and b is set of all real numbers except 1. Show that f is invertible and find f inverse. Is that clear? Listen here. Show that f is invertible or show that f is bijective. The condition is same. The criteria is same. Bijective means what? If a function is both 1, 1 and means the function is bijective. Invertible means what? अगर वो invertible शो करने मतलब क्या हमें वही 1, 1 और 2. ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट अभी हम फिलहाल सीबीएसई के सिलेबस में ये चीज नहीं है, बट अभी के लिए एक बार के लिए मैं एक सम सिर्फ इनवर्स का बताता हूं ताकि तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आए. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1, 1 के लिए. तो 1, 1 के लिए आई एम नॉट राइटिंग स्टेटमेंट ज्यादा. लेट f of x1 equal to f of x2. So we have assumed that there exist two distinct elements in the domain set which has got what? Same image. So if you've got a function f x equals to x minus 1 by x minus 4, definitely f of x1 will be x1 minus 1 by x1 minus 4, and f of x2 will be x2 minus 1 by x2 minus 4. If you cross multiply and if you simplify, and you'll find that the result is x1 equal to x2. I'm not multiplying and solving because it will I jayega tum logo se. Therefore we can say that f is 1. Now to show that the function is onto, we have to find out the range of the function. And how to find out range? Let y equal to fx. ठीक है, let y equal to fx. और उसके बाद x को सब्जेक्ट बनाना. Now tell me what is that y which has no pre-image. मतलब y यहाँ क्या डालेंगे तो उसका pre-image नहीं बनेगा. 1 clearly. Why? Because at 1 the denominator will be what? 0. And you know that any number by 0 is what? Not real, undefined. So यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? Now y minus 1 equal to 0. So it implies y equals to 1. So what is the range of the function?
Range is set of all real numbers except 1, and that is equals to what? The codomain set. That is equals to codomain set. Therefore, so f is onto. And as the function is both one and onto, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब एक सवाल है, एक चीज है ध्यान से एक बार नोट करना. There is a part which I have to explain you. Please don't copy and look here once. Listen here. अच्छा, have you copied this part? Have you? Or do you need time to copy? Everyone has copied? I'll show you this. यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? Take it. तो अगर मान लीजिए फंक्शन f है तो उसका इनवर्स हो जाएगा ऐसे. उसका इनवर्स ये हो जाएगा. f is a function तो इनवर्स ये हो गया. If the function is a to b तो उसका इनवर्स क्या होगा? और अब ये फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? सुनना बात ध्यान से सबके. ये जो हम लोगों ने x को सब्जेक्ट बना के रखा है, x को सब्जेक्ट बना के जिस एक्सप्रेशन को रखा है, ये वाला एक्सप्रेशन, रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन का y विथ x. क्या बोला मैंने? रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन का y with x. What is the result? It is 4x minus 1 divided by x minus 1. now if you want to check कि जो मैंने लिखा है वो सही है गलत, मैं तुमको चेक करके दिखा रहा हूं. एक काम करते हैं, डोमेन सेट से एक एलिमेंट ले लेते. तो डोमेन सेट से एक एलिमेंट ले लेते, मतलब लेट्स टेक 3 and let's see what is the image of this function, of this element 3 in this function f. तो 3 minus 1 क्या हो गया? 2. 3 minus 4 क्या हो गया? -1. What is the answer? इसका मतलब, क्योंकि मैंने अब तो मैं ऐसे नहीं लिख दे रहा हूं इनवर्स. इस फंक्शन का इनवर्स ऐसे मैंने नहीं लिखा, सोच समझ के लिखा. क्या कि क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या इनवर्टिबल है? इनवर्टिबल था या नहीं था? यस. अब मान लो मैंने इसका इनवर्स लिखा है, तो इसमें 1 2 -2 डालने के बाद, इस फंक्शन में -2 डालने के बाद उसका इमेज क्या आना चाहिए पता है? लेट्स चेक. व्हाट इज 4 into -2? -8 minus 1 is what is -2 minus 1? What is the answer? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो and listen here one thing, this variable is not important. You can write f inverse y. तो क्या होगा ये? 4y minus 1 by y. f inverse z बोलेंगे तो क्या होगा? 4z minus 1. इससे क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम यहाँ अगर z भी लिखते हैं, f inverse -2 क्या होता है? तो z की जगह -2 होता है. इससे कोई फर्क नहीं. आई थिंक समझ में आ गया. लेट मी टेल यू सिलेबस कैसे डिलीट हुआ है. So everyone write down this particular topic. I mean inverse कैसे निकाला जाता है. But this is not for further practice. Just for once. I mean एक बार समझने के लिए concept मैंने एक समझी. Okay? Copy it. Now, before doing one sum, there are many few basic concepts we have to teach you about that. And what is that? Write down domain and range of trigonometric functions. Okay? Domain and range of trigonometric functions. Because तुमको trigonometric functions का domain range नहीं पता हो, and then you will start studying the inverse trigonometric function, तो समझ में नहीं आएगा. पहले हम लोग domain and range of all trigonometric functions will see one by one. Okay? So pay attention. Listen here. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग sin x, sin फंक्शन. इसका डोमेन होता है. अच्छा एक और बात, we will not discuss anything that is angle in degree. We will all discuss in which measurement, tell me, unit, in radian only. Is that okay? डिग्री को हम लोग सोचेंगे कि ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ये अब इसका कोई यूज नहीं. डिग्री भूल जाओ, हम लोग सिर्फ रेडियन में डिस्कस करेंगे. सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 20, not 20 degree, or sin 30, or sin 3, or sin pi by 2, or sin 2 by pi, means we can say that the domain of trigonometric functions is set of all real numbers. मतलब तुम x के जगह पे कोई भी रियल नंबर्स डालना, इससे कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा ही. एंड लेट मी टेल यू,
कुछ ना कुछ आंसर मतलब 2000 5000 नहीं मिलने वाला। तुम कितना भी पढ़ो, x के जगह पे 2 लाख क्यों ना लगा दो, 20 लाख क्यों ना लगा दो, कुछ भी लगा दो, and you can put anything, you can put any real values. So what is a domain? You know that domain means फंक्शन में जो इनपुट डाल सकते हैं। तो फंक्शन साइन है, जैसे f था वहां पे, यहाँ क्या है, x is the, I mean the dependent variable I must say for this trigonometric function. जैसे f of x होता है ना, x वैसे यहाँ पे फंक्शन f की जगह साइन है और वो x की जगह यहाँ x. What does this x denotes? Angle. This angle, what is the domain of this angle? All yes. Now the question is, क्या हम इसके रेंज, इस इंटरवल में हम डोमेन वैल्यूज को डालें तो इसका आंसर क्या है, 20 30 40. Maximum value is what you know. 1. And what is the minimum value? -1. So the range of every sine function is, I mean not every, I mean sine function is -1, comma 1. Next, number 2. What is the domain of cos function? The domain of cos function is again set of all real numbers. You have to learn this by heart. And the range of this function is -1 to 1. तुम कुछ भी वैल्यू डालो, जितना भी बड़ा वैल्यू डालो, इसका जो आंसर है वो इसके बीच में ही है। मतलब साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1। कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू। लेकिन एक खास बात क्या है, अच्छा वो चीज हम लोग, अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग क्लास 10 में 0 और 90 के बीच में तुम लोग सब कुछ पढ़ता था, उससे आगे नहीं पढ़ता था, उससे लेस देन 0 भी नहीं पढ़ता। 0 और 90 के बीच में एक खास बात क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हर एक वैल्यूज के ऊपर जो इमेज होता है ना, वो यूनिक ही होता है। सभी में सबका इस इंटरवल पे सारे एंगल्स पे इमेज क्या होता है, यूनिक। बात समझ में ना क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब अगर मान लो मैं साइन 91 आ गया तो ये 1 0 to 90 के बीच में और किसी भी एंगल से नहीं आ रही। समझ में आया बात? अगर साइन 30 हाफ होता है तो हाफ आंसर 30 के अलावा और कोई एंगल्स पे आ सकता है नहीं। तो ये याद रखना, 0 से लेके 90 जो क्लास 10 में तुम लोग पढ़ा था, यही इंटरवल में तुम लोग पढ़ता था क्लास 10 में, कोई भी फंक्शंस का इस बीच में जो आंसर होता था दैट इज ऑलवेज यूनिक। नेक्स्ट नंबर 3, tan x। tan x का डोमेन के लिए, तो डोमेन को चलो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, नहीं होगा, देखना है क्यों नहीं होगा। मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यूज करता हूं। अच्छा टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ x + 1, फटाफट बताओ, इतना टाइम। all real numbers because this x plus 1 is what, polynomial function। समझ में आ रहा है ना, क्लास 11 में था ये। all real numbers पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब तुम कोई भी x का वैल्यू यहाँ डालो, कभी भी इसका डिनोमिनेटर 0 बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, मतलब 1। तो ये all real numbers के लिए इसका डोमेन क्या है, all real numbers। अच्छा एक बात बताओ तो x - 1 का डोमेन क्या है, all real numbers or not? Yes, but what is the domain of x plus 1 by x minus 1? All real numbers except 1। एक चीज देखो, अगर एक फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, दूसरे फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, तो उसके डिवीजन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट पॉइंट at which the denominator becomes 0। Tell me at which point denominator becomes 0? 1। So except 1 all is 0। Is that clear everyone? तो एक बात बताओ, tan function is quotient of sin x by what, cos x। तो tan x का डोमेन क्या होगा? अब तुमसे पूछा जाए कि fx का डोमेन क्या होगा, तो तुमको पता है कि g of x का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। h of x का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन f of x इज व्हाट, g of x बाय, तो क्या इसका डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा, नहीं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट वैल्यू एट व्हिच h of x is 0। तो बताओ तो h of x is 0 एट व्हिच वैल्यू? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब समझ में आ रहा है सबको को, मतलब h of x मतलब डिनोमिनेटर कब 0 होगा, x - 1 कब 0 होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, मतलब कब डिनोमिनेटर 0 होगा, 1 पे। तो 1 इज द 1 को हटा दो, बाकी सब हमारा रियल नंबर्स डोमेन सेट के अंदर है। ठीक है, इसीलिए इसका डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो बताओ तो एक बार sin x by cos x का डोमेन क्या होगा? तो sin x by cos x का डोमेन मतलब tan x का डोमेन में पूछ रहा हूं। इट इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट वैल्यू फॉर व्हिच cos x इज 0। तो cos x अब 0 कब होता है पता है? अच्छा एक बात बताओ तो cos x 0 कब होता है, एक बार बताओ,
पाई बाय 2 90 पे होता है। पता और कब कब जीरो होता है? सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे जीरो। ऑड मल्टीपल्स मतलब जैसे 90 पे जीरो हो गया, 90 तो नहीं बोलेंगे, पाई बाय 2 बोलेंगे। पाई बाय 2 पे जीरो हो गया तो 3 पाई बाय 2 लगा के देखना जीरो आएगा। 5 पाई बाय 2 लगा के देखना जीरो हो जाएगा। माइनस 5 पाई बाय 2 लगा के देखना जीरो आ जाएगा। माइनस 3 पाई बाय 2 लगा के देखना जीरो आ जाएगा। मतलब ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे जीरो। इसका मतलब tan x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट odd multiples of what? Pi by 2. How do we write odd multiples of pi by 2? Please note down. How do we represent odd multiples of pi by 2? How do we represent? We can represent this way. Note down. 2n plus 1 into pi by 2. Is that clear? 2n plus 1 into pi by 2 से हम represent कर सकते हैं. What does n belongs to? n belongs to set of integers. देखो हम दिखाए थे. पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 क्या क्या ऑड लगा दो ना 1 3 5 -1 -3 -5। अब देखो यहाँ n की जगह इंटीजर वैल्यू लगाओ तो अगर हम 1 लगाएंगे तो क्या होगा? 2 1 2 + 1 3 पाई बाय 2। यहाँ पे 0 लगाओ क्या आ रहा है? 1 पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2। -1 लगाओ क्या आ रहा है? -5 पाई बाय 2। Are you understanding? I hope you are getting this way or you can write this way. In book you will find that it is written this way and you must write this way only actually. But मैंने ऐसे एक easy language में लिख दिया फिर ऐसे. Is that okay? I think अब तुम लोग जवाब दे सकते हैं कि 4 नंबर में cot x का डोमेन क्या होगा? तो एक बात बताओ cot x का डोमेन क्या होगा? तो cot अच्छा इसका मैंने रेंज नहीं बताया सॉरी. इसका रेंज क्या होगा? कोई बता सकता है? tan x का रेंज क्या होता है? It is not just restricted in this interval but it is set of all real numbers. ठीक है. अब एक बात बताओ नंबर 4 cot x का डोमेन क्या होगा? कोई बता सकता है cot x का डोमेन? cot x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स except what? Except that value at which denominator is 0. तो cot x is what? cos x by sin x कब 0 होता है? sin x is 0 at what? pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi 0 minus pi minus 2 pi minus 3 pi all. So simply I can say that it is all multiples of pi by 2. समझ में आया? तो multiples of I'm sorry multiples of pi. मैं pi लिख बोल रहा लिख बताया मैंने pi by 2 बोल दिया गलती से. All multiples of pi. That is we can say that we must write this way. Multiple of pi. That is we can say that it is n pi. What does n belongs to? मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस जितना भी वैल्यूज डालो n की जगह 0 डाल दो तो 0 पाई मतलब 0 डालो तो नीचे क्या आ जाएगा? cot x मतलब क्या होता है? cos x by sin x तो sin 0 हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा डोमेन ऑफ cot फंक्शन. अच्छा एक बात बताओ cot का डोमेन किस पे डिपेंडेंट था बताओ तो? डिनोमिनेटर पे sin x पे. sin x 0 कब होता है? पता चल गया. sin x 0 कब होता है? n पाई पे. n क्या है? इंटीजर. मतलब अगर तुमसे पूछा जाए अब तुमसे ये पूछा जाए कि sin x is 0 at what? तुम्हारा वो भी उसका भी आंसर मिलेगा. सर इट इज 0 at what? 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे करके लेफ्ट में कहां? माइनस पाई -2 पाई -3 पाई और क्या? 0. समझ में आया तो बात? अब तुमसे पूछा जाए कि cos x 0 कब होता है? वो भी मिल गया आंसर. ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब तुमसे sec x पूछा जाए तो भी जवाब मिल गया. sec x का डोमेन क्या होता है बता दो? sec x is what? 1 by cos x. cot x is what? cos x by sin x. तो अब यहाँ tan x क्या होता है? sin x by cos x और cot x क्या होता है? cos x by sin x. तो एक बात बताओ अगर तुमसे पूछे कि sec x का डोमेन क्या होगा तो sec x is 1 by cos x. cos x मतलब जो tan x का डोमेन है वही sec x का डोमेन होगा. जो cot x का डोमेन है वही क्योंकि cos x क्या होता है? 1 by sin x और cot x क्या होता है? cos x by आई होप समझ में आ गया. इसका सिर्फ मैं तुम लोगों को होमवर्क 2 चीज छोड़ रहा हूं दिमाग लगा के बोलना कि 4 नंबर का रेंज क्या होगा. ठीक है. और उसके बाद 5 और 6 तो मैंने डोमेन बता दिया उसका रेंज क्या होगा. ये थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाना और वो करके आना. ठीक है. एक बार कॉपी कर. आई होप समझ में आया मैंने क्या बोला. डोमेन तो 4 5 6 तीनों का मैंने क्लियर कर दिया. 4 का डोमेन ये रहा. 5 का डोमेन और किसका डोमेन बराबर होगा? 5 मतलब sec x का डोमेन किसके बराबर होगा? cos x का डोमेन किसके बराबर होगा?
रेंज तुम लोग एक बार कर, इसका भी रेंज, इसका रेंज तुम लोग सोचना क्या नहीं होगा, क्या छोड़ के बाकी सब इसका रेंज होगा, सोच के हमें कॉपी करने को. So as we are moving to the chapter, that is, I mean not moving, we are in discussion. And which chapter हम लोग कौन से चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स. तुम लोगों को सब कुछ मैंने समझा दिया, तुम लोगों के सामने मैंने सब कुछ क्लियर पिक्चर रख दिया. अब मेरा सवाल तुम लोग से है, इज साइन एक्स साइन फंक्शन बाइजेक्टिव? टेल मी, is sine function bijective? Please think for a while. I'll just give you 30 seconds. Fast reply. Is sine function bijective? So start thinking about it. It is 1 1 or not? Is it 1 1? Fast. Tell me yes or no. फटाफट. नहीं नहीं क्यों? जीरो पे साइन जीरो पे भी वैल्यू तो सेम रहता है वैसे. क्या होता है सेम? क्या आई मीन अभी तो तुम लोगों को मैंने बताया ये ना साइन के बारे में, cos x by sin x. sin x जीरो कब होता है? n पाई पे. तो एक बात बताओ, साइन का वैल्यू जीरो कब होता है? 1 पाई 2 पाई 3 पाई. साइन पाई क्या होता है? जीरो. साइन 2 पाई क्या होता है? जीरो. साइन जीरो क्या होता है? जीरो. साइन 3 पाई क्या होता है? जीरो. मैनी टू 1 हुआ या 1 1 हुआ? मैनी टू. तो साइन x इज नॉट, आई मीन नॉट 1 1. ओके, नॉट बाइजेक्टिव. व्हाई? ऑन टू भी नहीं है. देखो तो ऑन टू क्यों नहीं है बताओ तो. इसका रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर. तुमको पता है कोडोमेन इज बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं दिया मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो अगर तुम देखो, चलो ऑन टू तो हटा दो, छोड़ो ऑन टू भी हटा दो. क्या ये 1 1 है? तो 1 1 ही नहीं है तो ये क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को क्या आना पड़ेगा? 1 1 एंड. तो चलो ऑन टू का बात छोड़ दो, मैंने ले लिया कि इस फंक्शन का डोमेन भी कोडोमेन भी रियल नंबर. एक बात का बात हो गई, तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो ऑन टू हो गया. लेकिन क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव 1 1 है? क्योंकि मेनी वन हो गया ना ये तो. देयर आर मेनी वैल्यूज जिससे साइन फंक्शन का आंसर जीरो होता है. वैसे देयर आर मेनी वैल्यूज जिससे साइन फंक्शन का आंसर हाफ होता है. क्या सिर्फ साइन 30 हाफ होता है? अगर हम 10 में ये सवाल पूछते तो तुम बोल सकते था सर सिर्फ साइन 30 हाफ होता है. बट 11 में तुमने ये देखा क्या सिर्फ साइन 30 साइन फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक. मतलब साइन 30 पे भी आंसर हाफ होता है और भी बहुत एंगल्स जिसपे आंसर क्या आएगा? हाफ आएगा. So it's not 1 1. So then why are we studying this chapter, that is inverse trigonometric function? Is a question mark, big question mark. अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है नहीं तो चैप्टर क्यों है? जबरदस्ती नहीं. इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाया गया, it is made bijective. To make it bijective, what mathematicians has done, they have restricted the interval of domain from all real numbers to a very smallest interval where the function becomes 1 1. And what is that smallest interval? It is minus pi by 2 to pi by 2. Let me tell you, ये sine function, any trigonometric functions are not 1 1. All trigonometric functions are many. And all trigonometric functions are not bijective. But why then? How it is possible? तो ये inverse trigonometric functions का चैप्टर फिर पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है? इसे पॉसिबल बनाया गया. तो पॉसिबल बनाने के लिए लेट्स बिगिन विद साइन फंक्शन. साइन फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए इसके इंटरवल को, जो डोमेन सेट है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में. और कोडोमेन रेंज को एक ही सेट पे डिफाइन कर दिया गया, दैट इज माइनस 1 to 1. अब देखो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज. कोडोमेन दोनों बराबर कर दिया. कोडोमेन बोल दे तो ये क्या हो गया? फंक्शन बाइजेक्टिव है. अब क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंटरवल है जिसपे फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 and sorry 1 1 and 1 2. Is that clear? अब तुमसे अगर पूछा जाए कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ये होगा. सुनना एक बार ध्यान से. Now let me tell you that if si and sin is a function in this interval, we have restricted the domain interval and the codomain interval to make it what? Bijective. So अगर si and sin एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स का नोटेशन क्या होगा? जैसे f एक फंक्शन है और वो अगर इनवर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स. Do you find that f inverse means 1 by f? No, that's correct. If अगर ये चीज समझ में आने लगा ना, मतलब सोचना तुम एग्जाम में मार्क्स लूज नहीं करेगा. यही समझ में नहीं आता बहुत. अगर f एक फंक्शन है तो f इनवर्स का मतलब ये है नहीं. तो साइन फंक्शन है तो साइन इनवर्स का मतलब 1 by sin है नहीं. अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स में डोमेन क्या होगा? बोलो सबको. यस, व्हाट इज द रेंज और प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. और द रेंज क्या है? रेंज -5. इज दैट क्लियर एवरीवन?
Similarly, you'll find that there are, I mean, the restricted interval for other functions are there. I mean, ऐसा है, एक बार ये कॉपी कर लो, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से बाकी पांचों को हम लोग तो जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ताकि वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है। ये मैंने एक बताया और बाकी बहुत अब पांच भी है। कॉपी। So I'm not giving you the restricted domain of the remaining five functions that I'll just send you in the WhatsApp group. Okay, you just take from there and copy down in your formula copy. I'll just I mean अब हम उसकी क्योंकि कंसेप्ट चाहिए तुमको, कंसेप्ट समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या करेंगे ताकि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, so that we can study inverse trigonometry. ये तो क्लियर हो गया। Now let's move on to the second topic. अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन 90 का आंसर क्या है, अब इसी इंटरवल में बात करूं। अब नाउ वी हैव मूव टू विच टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हमको समझ में आने लगा क्या है, तो अब हम उसी इंटरवल पे बात करेंगे। अब हम पूरा जो उसका डोमेन है ना उस पर बात नहीं करेंगे। तो साइन 90 का आंसर क्या है, अब बताओ मुझे, साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या है, 5। Is that clear? अब हम तुमसे ये सवाल पूछे, मैंने क्या किया, जनरल तुम लोग को एक आइडिया दे दिया कि इनवर्स कहां से आया, क्योंकि आधा या ज्यादा लोगों को पता है क्या समझ में आता है कि सर 1 बाई साइन क्रॉस मल्टीप्लाई साइन पाई, ऐसे ऐसे समझ में आता है। बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं है चीज, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं। तो ये आइडिया मिल गया। अब बताओ एक बार tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4, व्हाट इज tan इनवर्स 1, 5। That's clear. So exactly same way if I ask you what is sin theta, so sin theta is what, p by, so can you tell me what is sin inverse p by h? Yes, theta, that's correct. So if I say cos theta is b by h, what is theta, cos inverse b by h. So write down for the remaining four. Remaining four means, remaining four मतलब क्या, tan theta क्या होता है p by b, तो फिर थीटा क्या होगा, tan इनवर्स p by b। तो बाकी वो तीन लिखो, tan के बाद sec, फिर उसके बाद cosec, उसके बाद cot, चलो सबको लिखो। Now number 3. So suppose we have got a function f r to r and f of x is 3x minus 1. I'm not showing you the steps, you all know how to find out inverse. I'm directly writing this function is bijective. Let me tell you, ये bijective है पहले से, मैंने bijective ही लिया, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, चेंज करेंगे तो r to r ही रहेगा, और इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा x plus 1 divided by 3। ठीक है, चेक कर सकते हो तुम। What is the image of 1? 2. What is the image of 2 here? 1 आ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला, f of 1 का आंसर क्या है 2 और f इनवर्स 2 का आंसर क्या है, ठीक है। अब एक चीज देखना बहुत अच्छा यहाँ पे, जो हम लोग यूज करके कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे, ठीक है। बट वो डिराइव करने से पहले अपने कॉपी, अच्छा पहले एक बार वो हम एक बार देखना f of f इनवर्स x। लेट्स सी व्हाट इज f of f इनवर्स x। ओके, तो यहाँ ध्यान देने कर सकते हैं, आई एम टेकिंग LHS, हमें आंसर पता है लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक बार डिराइव करता हूँ f of f इनवर्स x का आंसर क्या है, लेट्स फाइंड इट। तो सबसे पहले ये बताओ तुम लोग, व्हाट इज f इनवर्स x, टेल मी। लेट्स स्टार्ट ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। व्हाट इज f इनवर्स x, टेल मी, रिपीट एवरीवन, x plus 1 by 3। तो मैं यहाँ f of f इनवर्स x की जगह पे x plus 1 by 3 लगा। Now tell me, अगर f of x 3x minus 1 है, तो what is f of x plus 1 by 3? मतलब x के जगह पे क्या है, x plus 1 by 3। तो जहां x है वहां पे क्या लग जाएगा, you know what is the meaning of dependent variable? So the value of dependent variable is what, x plus 1 by 3। So wherever you find x, at the place of x put x plus 1 by 3। Are you understanding everyone? Yes? समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे
कि f of x 3x minus 1 है, तो f of x plus 1 by 3 क्या होगा? 3 times x plus 1 divided by 3 minus 1. 3 gets cancelled. X plus 1 minus 1 is equals to what? So we conclude that f of f inverse x का आंसर क्या होगा? ठीक है, सिंपल से एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखना है वन ए का इमेज क्या है? वन। अब मान लो उसके इनवर्स अगर मैं लिखूं तो वन का इमेज क्या होगा? ए। अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज f of f inverse a, sorry 1, let's find out first. Tell me what is f inverse 1 का आंसर? Tell me what is f inverse 1 का इमेज? a. What is f of a का आंसर? आ रहा है समझ में? ये सब चीज समझना पड़ेगा, एग्जाम में एमसीक्यू में यही सब चीज आ जाएगा। फंस गया डिफरेंशिएशन में, इसको पता नहीं डिफरेंशिएशन में कैसे इसको अप्लाई करें। जो मैंने भी पूछा ना तुमको, यही कंसेप्ट को डिफरेंशिएशन में भी वो पूछ सकता है, कैलकुलस में भी इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आता है। मतलब 2-4 चैप्टर को क्या करते हैं इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेट करके मर्ज करके एक सम बना सकता है, जहां पे तुमको फंक्शंस भी पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए, कंटिन्यूटी भी पता होना चाहिए। वैसे करके भी क्वेश्चंस बन रहा है आजकल सीबीएसई आईएससी में। एक बात बताओ, इस हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन इज अ फंक्शन एंड यू नो इन्वर्टिबल कब होता है साइन? वो इंटरवल मैंने बता दिया, वैसे कॉस वैसे tan। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्लियर एवरीवन? समझ में आया सभी को? साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x। क्यों? f ऑफ f में हम क्या लगाएंगे? उसका इनवर्स, तो आंसर क्या होगा? x। वैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? x। दैट्स करेक्ट। So what is cos of cos inverse x? X. What is tan of tan inverse x? और x का इंटरवल क्या होगा? मैं वो चीज आज नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा एक दिन में सब कुछ, तो मैं वो स्पेस रखना राइट साइड में। I'll tell you x का इंटरवल क्या होना चाहिए। वैसे एक पूछ ही लेते हैं, अब बताओ तो एक बार x का इंटरवल क्या होना चाहिए। अच्छा बताओ तो sin इनवर्स x। Tell me everyone, sin इनवर्स x में x का इंटरवल क्या होना चाहिए? बताओ x किसके किसके बीच में होना चाहिए? That's correct. You know डोमेन सेट क्या होता है? इसका आंसर किसमें होना चाहिए? इस पूरा का आंसर किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए? अब बताओ तो sin इनवर्स x कहां बिलोंग करना चाहिए? तुम देखना जब बुक में फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा sin of sin inverse x equals to x. x belongs to the domain of what? Sin inverse. उसी तरह cos of cos inverse x is x. x must belong to the domain of cos inverse. समझ में आया तो बात? तो एक बार यहां तक आज कॉपी करके छोड़ दो, इसके अच्छे से नोट्स बना करके रिवाइज ऑल दीज कांसेप्ट्स, मेक अ प्रॉपर note of everything which I have done in today's class and come in the next class. We'll see in the next class because I can अब इससे आगे भी हम लोग और मूव कर सकते थे क्लास, बट कंसेप्ट का पूरा एक दिन में ज्यादा हो जाएगा, so leave it till